अच्छी आवाज कुछ ना सा Okay, let us start. Page number 77 please open कीजिए, ठीक है? Asila, Benish और मुसद्दिक, I am repeating it. So it was on the आपकी request पे था ना कल, आप मैम ये वाला chapter repeat कीजिए to the cuckoo. So I am repeating it. Okay. आप सबने book खोली? Yes, ma'am. Okay, fine. So I will not go into the intro of the writer because मैंने already discuss किया, आप खुद से भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है? So let us directly come to the point. Oh, blithy newcomer, I have heard. So that is what is here. Oh, blithy newcomer. So it's in a note of interjection, note of exclamation mark, exclamatory mark से कह रहा है writer. Oh, blithy newcomer. Blithy newcomer means what is blithy? Cheerful. जो अपनी धुन में मस्त हो, खुश हो, carefree हो, उसको कोई फिक्र नहीं है. A blithy, ठीक है? Newcomer means जो नया आया. I have heard, मैंने सुना. I hear thee. I hear thee means you. मैंने आपको सुना. And rejoice, and I am happy. Oh cuckoo, shall I call thee bird? क्या मैं तुम्हें बुलाऊं एक bird? So he is as if talking and addressing to the cuckoo directly. Or but a wandering voice. क्या मैं तुम्हें बुलाऊं एक wandering, ऐसी घूमती जो एक जगह रुकती नहीं है, जो wander करती है एक जगह से दूसरी जगह voice. While I am lying on the grass, जबकि मैं लेटा हूँ कहाँ पर grass में. Thy twofold shout I heard. Thy means your, thee means you. Thy, it's an old English words. ठीक है, die means your, twofold shout, twofold means दो, it's echoing कि आप बात कर रहे हैं और ये टकरा कर वापस आ रही है, दो fold, मतलब दो तरह की, दो facet, ठीक है, twofold shout I hear, that is echoing. From hill to hill it seems to pass, and your voice is passing due to echo, it's passing from hill to hill at once far off and near. कभी क्योंकि echo में कभी आवाज बहुत दूर चली जाती है and then it comes very what we say near, ठीक है? तो ये इसको यही कहता है. आप टर्न कर लीजिए पेज नंबर 78. Okay. Do babbling only to wail. Babbling means कि आप उस तरीके से बात करते हैं क्विक और कंफ्यूजन और एक्साइटेड वे में, जैसे छोटा बच्चा बात करता है, पानी भूल करा, वो एक्साइटेड भी होता है और वो बात तेज तेज भी होती है, हमें समझ नहीं आती, उसको बैबलिंग कहा जाता है. Only to wail मतलब वैली, you are talking to only to valley of sunshine, और this valley, ये वैली किसकी कंसिस्ट करती है? सनशाइन और फ्लावर्स की. Do brings unto me a tale. आप मेरे लिए कहानी लेकर आते हो क्योंकि you have seen the nature, you have seen the world, you have seen the things from a long time. और आप एक कहानी लेके आते हो visionary hours कि आगे क्या होगा या अब इसके बाद क्या होगा, and what you have seen already, आपने जो witness किया है इतने सालों में, ठीक है? Thrice welcome darling of the spring, कि 3 दफा मैं आपको वेलकम कर रहा हूँ. I am welcoming you darling of the spring. So he is giving one beautiful name to the cuckoo, that is it's a darling of spring. बाहर की जो darling है that is cuckoo. Even yet though art to me, आप एक art हो, एक beauty हो मेरे लिए. No bird, जैसे आम इंसानों के लिए आप एक simple bird हो, एक simple voice है, but an invisible thing. अब मेरे लिए आप एक invisible thing हो. आप देख लीजिए कि राइटर के लिए ये चीज क्यों invisible है, ये चीज हमें समझनी बहुत जरूरी है. A voice, a mystery, कि मेरे लिए एक आवाज हो, आप एक mystery, एक जिसको mystery means एक क्या कहते हैं उसको, mystery होता है फलसफाना means जिसको हम कहते हैं, जिसको एक ऐसी चीज जिसको आपने पहेली, जिसको आपने बूझा नहीं हो, that you have not undiscovered, ठीक है? Okay. The same home in my school boy days, कि वही चीज हो जिसको मैं अपनी स्कूल बॉय डेज, जब मैं बॉय था और स्कूल में था, ठीक है? Okay. I listen to that cry, that means I used to listen to your cry, कि मैं जब आप ये अपनी जर्नी, अपना बचपन, अपना मतलब जो इसकी ग्रोथ है कि ये जब छोटा था फिर बड़ा हो गया फिर अब यंग हो गया, ये अब दिखाएगा अपनी रिलेशनशिप विद द
वॉइस ऑफ कुकू कि जब मैं छोटा था मैं इस आवाज को सुनता था, इस क्राई को सुनता था, तो व्हाट इट मेड मी टू डू, इट मेड मी टू लुक एट 1000 वेज, कि मैं 1000 डायरेक्शंस में देखता था, और बुश, ठीक है, झाड़ियों में, ट्री में, स्काई में, आई यूज्ड टू सर्च फॉर इट, टू वॉइस ये कहाँ से आ रही थी, टू सीक दी डिड आई ऑफन रोव, कि मैं जो आपको ढूंढने के लिए, आपको तलाश करने के लिए मैं रोव भी करता था बोट्स को, ठीक है, मैं ट्रेवल करता था, आई यूज टू ट्रेवल अलोंग, क्या कहते हैं, डिस्टेंस। यहाँ पर रो का मीनिंग लिखा है टू मूव, ट्रेवल और लुक अराउंड, स्पेशली इन अ लार्ज एरिया, ठीक है। देन देयर इज अनदर वर्ड, okay, through woods and on the green, that means I used to roam through the woods, woods means jungle, वहां चला जाता था, on the green means plains में, बागों में, and though we're still a hope, और मेरा बचपन देख लीजिए, मेरा जो विजन देख लीजिए, मेरा बचपना देख लीजिए, कि मेरे लिए एक होप थे, कैसे एक होप थे, कि I had a hope I will find you out, मैंने आवाज सुन ली, और मेरा ये होप कि बच्चे का जो एक जुनून होता है कि नहीं जी मैं इसको ढूंढ लूंगा, कि आपको मैं आई विल फाइंड इट आउट, दैट मीन्स यू वेर अ होप फॉर मी, और एक लव, एक केयर, कि मुझे पूरा यकीन था कि मैं आपको ढूंढ लूंगा, आई विल फिगर इट आउट, और आपकी आवाज सुनकर मैं पागलों की तरह आपको ढूंढता, दैट मीन्स आई हैड अ लव फॉर योर वॉइस एंड फॉर यू, स्टिल लॉन्ग मीन्स होप करता था, फॉर नेवर सीन, कि कोई ऐसी चीज जिसको मैंने देखा नहीं है, मैं फिर भी होप करता था कि मैं इसको एक ना एक दिन देखूंगा। आप देख लीजिए, इट्स अ सेम फीलिंग, क्योंकि ये जो वर्ड्सवर्थ है, ही कंसिडर्स नेचर एज अ गॉड फॉर हिमसेल्फ, क्योंकि अगर आप इसकी फिलॉसफी पढ़ेंगे आगे जाके, अभी तो आप लोगों की नहीं, इसके लिए नेचर एक गॉड, एक गाइड, एक टीचर की क्या कहते हैं, क्या वैल्यू रखता था, तो इसीलिए एक नेचर को कॉल करते हुए, क्योंकि अगर हम देखेंगे जो कुकू है, कुकू इज वन ऑफ द क्रिएचर ऑफ नेचर, ये एक नेचर का एक क्रिएचर है, और ले भी जाता है आपको नेचर के करीब, तो इसको बुलाकर ये जो वर्ड्सवर्थ है, ये कॉल करता है गॉड को, आप देख लीजिए, ये कहता है कि मैंने आपको सुना नहीं, बिकॉज ही कंसिडर्स द वॉइस ऑफ नेचुरल थिंग्स एज अ वॉइस ऑफ गॉड, ही सेज दैट कि मेरे अंदर होप है कि मैंने आपको देखा नहीं है, बट आई वांट टू सी यू एंड आई एम विशिंग कि मैं आपको एक ना एक दिन देखूंगा, एंड आई कैन लिसन टू दी, मैं आपको सुन सकता हूँ, येट कैन लाई अप ऑन द प्लेन, और मैं प्लेन पे लेट भी सकता हूँ, एंड लिसन टिल आई डू बिगेट, मतलब मेरी मेमोरी में आप इतना शार्प बस चुके हैं कि अगर मैं किसी जगह लेटता हूँ घास पे, तो मैं इस मूवमेंट को रिक्रिएट कर सकता हूँ अपने माइंड पे, आई कैन, मैं फिर भी सुन सकता हूँ, आप प्रेजेंट हो या ना हो, बिकॉज माई मेमोरी इज शार्प, एंड लिसन टिल आई डू बिगेट, जब तक कि मुझे ना मिले दैट गोल्डन टाइम अगेन, व्हाट इज द गोल्डन टाइम हियर, द गोल्डन टाइम इज द टाइम ऑफ हिज चाइल्डहुड, when he used to search for the किसको क्या कहते हैं, search for this cuckoo, oh blessed bird, now he calls it blessed, जो God की तरफ से bless किया गया हो, the earth we pace, जिसके आगे हम ढूंढ रहे हैं, भाग रहे हैं, again appears to me, मुझे लगती है, and अब an unsubstantial fairy place, मुझे लगती है एक fairy place that is fit home for thee, जो बिल्कुल एक मुकम्मल, एक perfect place of living है for you. Is it clear? Any questions? Sila, any question? No, ma'am. Are you sure? Yes, ma'am. बेनिश, आपको तो नहीं कोई सवाल है? बेनिश, are you listening? Are you listening? आपको बेटा समझ आया मैंने क्या बोला? Okay, she is just only. फैजान, तुम्हें समझ आया? फैजान. Okay, फैजान. At least speak back. मैम समझ आया, नहीं समझ आया फैजान? बताइए। आई डोंट नीड टू, मुझे जार पार करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मुसद्दिक, समझ आया आपको बेटा? Yes, ma'am. एनी क्वेश्चन? No, ma'am. So I need to send you only the homework of this, nothing else.
And then the second point, that is ये क्या कहते हैं उसको, कार ड्राइवर, nothing else. बाकी और कोई क्वेश्चन? असला और कोई क्वेश्चन? मैम एग्जाम के लिए बोले अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। पुनः पूछ देनी बाडवन के। मैम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे ना? हाँ, या फिर इन द ब्लैंक एंड मल्टीपल चॉइस। हाँ मैम बेटा, वो वाला मतलब करना है जो ऊपर होगा इनको लिख के। नहीं आप देख लीजिएगा, आप सारा देख लीजिएगा, फिर पता नहीं किस में आएगा, पढ़ लीजिएगा सारा, ठीक है? ओके मैम। चलिए, ओके, दैट्स इट। एनी क्वेश्चन? नो। बस मुझे आपको और कोई, और कल क्या पढ़ेंगे आप? कल कौन सा टॉपिक रिपीट करना है आपको? जल्दी जल्दी बताइए, डिसाइड करके रख दीजिए। टेम्पलेट 2। तुम्हें टेम्पेस्ट के पीछे ही पड़े हो, बाकियों को भी वो इशू होना चाहिए ना, देन आई विल मेक इट शो। बताइए फैजान, बताओ जल्दी, कल कौन सा टॉपिक रिपीट करना है? जल्दी बताओ, से इट लाउडली। फैजान बोलो जल्दी, फैजान। बताइए आसला, बेटा कौन सा टॉपिक कल आपको रिपीट करना है? जल्दी बताइए। मैम ये समझ आए प्रोज वगैरह, तो आप इन्हीं को देखिए। रोज देखना है? मैम वो आया हमें समझ। और तो कोई है ही टॉपिक है जो कल रिपीट करना है आपको? खाली लेटर रह जाती है। लेटर मैंने आपको पिछली U1 और यूनिट में पढ़ाई थी जब आप आते थे, अगर आपको याद है। आई विल स्टिल रिपीट दैट, लेकिन वो आपको फ्राइडे सैटरडे रिपीट हो जाएगी, आज नहीं। ओके मैम। ठीक है? ओके मैम। क्योंकि इस बार आपको कोई ग्रामर नहीं है मत। ना तो अगर सिलेबस चेक करो तो मशुन कहन ग्रामर, सिर्फ बुखुन ग्रामर जो हमने डिस्कस किया। उसमें खाली लिख के है ऐसे और लेटर बस। ऐसे तो ऐसे और लेटर, ऐसे आप कोई भी अपनी चॉइस के लिए कर लीजिएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। खाली लेटर बचती है, वो मैं आपको डिस्कस करूंगी। और आपका पेपर MCQ बेस्ड है, मुझे नहीं लगता आपको, फिर भी आई विल स्टिल डिस्कस दैट, नो इशू। ओके, चलिए, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।